Hello students, today we will see first topic, Introduction to Bookkeeping and Accountancy. Into this first topic, we discuss the concept of bookkeeping and the concept of accountancy. Into this syllabus, first two topic is going to theoretical topics. Introduction to Bookkeeping and Accountancy and Fundamental of Double Entry Bookkeeping System. ये दो टॉपिक है, ये दो टॉपिक आपके थियरी के टॉपिक है. यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको आता है एग्जाम के अंदर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको इस दो टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी की स्टडी करने से पहले जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जनरल है, लेजर एंट्री आपको देखना है, सब्सिडी बुक्स आपको देखना है, डिप्रिसिएशन देखना है, रेक्टिफिकेशन एरर देखना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखना है, प्रोप्राइटर कंसर्न्स फाइन अकाउंट आपको देखना है और सिंगल एंट्री सिस्टम. बट बिफोर यू स्टडी द मेन कंसेप्ट, थ्योरी पार्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो क्या होता है, प्रैक्टिकल आपको सब आता है, मगर थ्योरी अब जो आपको कंसेप्ट पूछी जाती है, व्हाट इज बुक कीपिंग, आपको उसका डेफिनेशन मालूम रहता है. आप डेफिनेशन बोलते हैं, बुक कीपिंग इज आर्ट एंड साइंस रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग द डेटा सिस्टमेटिकली इनटू सिस्टमेटिक मैनर इनटू दिस बुक मेंटेनिंग और रिकॉर्ड्स. बट इनटू दिस लेक्चर वी सी द कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग मीन्स व्हाट and accountancy means what? Into this advanced course, we see the textbook page number 1, chapter number 1, Introduction to Bookkeeping and Accountancy. A study of this subject, ये जो सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, जो मेन सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स में का, बाकी अदर सब्जेक्ट आपको है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है और लैंग्वेज आपको वो सब्जेक्ट आपको रहते हैं. और ये जो सब्जेक्ट है आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसमें प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा है और थियोरेटिकल पार्ट आपका बहुत कम होता है. 11th में आपको थियरी ज्यादा है, 2 टॉपिक आपको थियोरेटिकल पार्ट से, बाकी अनदर 8 टॉपिक जो आपके हैं वो प्रैक्टिकल टॉपिक्स आपके हैं. यानी इनटू दिस टॉपिक फर्स्ट या इनटू दिस सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, अ स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट रिक्वायर मोर थियोरेटिकल जो पार्ट्स आपका रहता है. अ स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट रिक्वायर मोर प्रैक्टिस एंड लेस recording. More practice and less recording, the study of this subject required. प्रैक्टिस आपको इस सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा करना है और लेस रीडिंग आपकी होती है, यानी रीड आप कम करते हैं और प्रैक्टिस से आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट उसके ऊपर करते हैं. जिस तरह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, उसी टाइप में थ्योरी इंपॉर्टेंट रहती है. So theoretical parts play important role in these topics. So into this topic, first introduction to bookkeeping and accountancy, we see the concept of bookkeeping. Bookkeeping क्या होता है? Bookkeeping means to keep the records systematically, to summarize the records, to classifying the records. Which types of records are maintaining into this bookkeeping? Monetary transactions records या non-monetary transactions records. Which types of records are maintaining into this bookkeeping and accountancy? So into this concept, bookkeeping, which is the business activities involved into this record. When you keep the record systematically, only monetary transactions या money related transactions are recording into this bookkeeping and accountancy. But before we have seen the concept of bookkeeping, we see the concept of business. Business activities क्या होती है? Business activities में क्या होता है? We are buying and selling of goods. We purchase some goods, we selling some goods. So into this concept of business activities, so business involve exchange of goods and services. और चैप्टर we see, जो चैप्टर का नाम आपका है चैप्टर आपका फर्स्ट है इंट्रोडक्शन
to bookkeeping and accountancy. Accountancy means basically consider bookkeeping. So what is bookkeeping? Bookkeeping is to keep the record systematically. It is a recording process. It is a record keeping process. Bookkeeping is a record maintaining process. We have maintaining records into this bookkeeping. It is a record maintaining process. Record maintaining process. And record keeping process. Record keeping process. Record keeping process. Record maintaining process, record keeping process. इसके बाद में देखेंगे व्हाट इज बुक कीपिंग, द डेफिनेशंस वी आर डिफाइंड इन आवर टेक्स्ट बुक में आपको डेफिनेशन आपको दिए हुए। सो बिजनेसमैन जो डील करता है, तो बिजनेसमैन डील विथ अदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सच डीलिंग इन बिजनेस आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। सो बिजनेस जो कंसेप्ट आपकी है, बिजनेस जो आपका होता है, जिसे आप व्यवसाय कहते हैं, ये व्यवसाय जो आपका होता है, तो बिजनेस इन्वॉल्व द टू थिंग्स। बिजनेस इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Exchange of goods and services business involved into this two activities we have seen into this business, and buying and selling of goods. Buying and selling, खरीद और उसको बेचना। Buying and selling of goods and services. Buying and selling of goods and services. Goods and services. For cash or credit. This is the concept of business. बिजनेस में दो चीजों का समावेश होता है, एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ये रहेगा फर्स्ट बिजनेस कंसेप्ट। सेकंड, मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो उत्पादन करता है, मैन्युफैक्चरर जो बाय करता है, first we buy the raw material से क्या करता है, गुड्स प्रिपेयर करता है, कन्वर्ट देम इनटू द फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल से क्या करता है, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स में वो उसको कन्वर्ट करता है, और उसके बाद में क्या करता है मैन्युफैक्चरर, सेल देम एट प्रॉफिट। सेल देम एट प्रॉफिट लेकर वो क्या करता है, उसको सेल कर देता है। सो इनटू दिस बिजनेस कंसेप्ट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज में सेवा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चर बाय द रॉ मटेरियल, that raw material converted into the finished goods, then sell them into the market at profit. मार्केट में क्या करता है, प्रॉफिट में उसको सेल करता है। यानी एवरी बिजनेस है प्रॉफिट मोटिवेटेड बिजनेस। हर बिजनेस का उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा नफा कमाना। इसलिए बिजनेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज फॉर कैश एंड क्रेडिट। नगद और उधारी पे क्या करता है, वहां पे ट्रांजेक्शन होते रहता है, बाइंग एंड सेलिंग। इनटू दिस कंसेप्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू दिस बुक कीपिंग। वी आर मेंटेनिंग द डायरी। एक डायरी आप मेंटेन करते हैं, और उस डायरी में सिस्टमेटिक डेट वाइज रिकॉर्ड्स वी आर मेंटेनिंग इनटू दिस बुक कीपिंग।
Date wise records we are maintaining into this bookkeeping. Summarize the records we are maintaining into this bookkeeping. Classify the data into this bookkeeping. After we see this definition of bookkeeping, we have see summarizing data, how to summarize the data into this bookkeeping accountancy, which is the definitions after this concept. So bookkeeping is a record maintaining process, bookkeeping is a record keeping process. Into this bookkeeping and second word accountancy. So into this concept, bookkeeping is a primary stage, bookkeeping is a first stage. ये आपकी पहली स्टेज है. When you start your business, we maintain the diary. अभी आप क्या करते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं. और डायरी में क्या करते हैं, आप डे टू डे रिकॉर्ड्स पूरा डेट वाइज लिख करते हैं. कितना परचेस किया, कितना सेल किया, कितना कैश है, कितना क्रेडिट सेल्स है. ऑल रिकॉर्ड्स वी आर मेंटेनिंग इनटू दिस बुककीपिंग. यानी जिस तरह घर में आप डायरी मेंटेन करते हैं मंथली रिकॉर्ड्स के लिए, मंथली जो आपका ट्रांजेक्शन आपका होता है, जो आप परचेस करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हैं. और मंथ के आखिर में आपको मालूम होता है कि इसमें नेसेसरी एक्सपेंसेस कौन थे, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कौन से, आपको समझ में आते हैं. और उसके नेक्स्ट मंथ क्या करते हैं, आप उस एक्सपेंसेस को कम करते हैं. यानी बिजनेस में भी उसी टाइप में पूरा रिकॉर्ड्स आपका मेंटेन करते रहता है उस बिजनेस का. ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सिस्टमैटिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से क्या होता है, ही नो द एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन दैट अकाउंटिंग पीरियड, दैट फाइनेंसिंग ईयर. उस साल में, उस अकाउंटिंग पीरियड में कितना नफा हुआ, या आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है, टोटे में चल रहा है, उसको हमें अंडरस्टैंडिंग होता है. सो ही कीप द रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली, डेट वाइज रिकॉर्ड्स वी आर मेंटेनिंग इनटू दिस बुककीपिंग. इसलिए कहा जाता है कि बुककीपिंग मींस टू कीप द रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली. उसी के ऊपर डेफिनेशंस आपको लर्न करना है. टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट टॉपिक आपका है थ्योरेटिकल टॉपिक्स, उसमें आपको ये लर्न करना है. इसलिए बिजनेस एक्टिविटी जो होती है, द काइंड्स ऑफ बिजनेस जो है, काइंड्स ऑफ बिजनेस, काइंड्स ऑफ बिजनेस में पहला बिजनेस जो आपका होता है, जो बिजनेस के जो टाइप्स है, जो प्रकार आपके होते हैं, पहला है आपका ट्रांसपोर्टिंग जो बिजनेस आपका होता है, ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म आपका होता है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म जिसमें आप वाहतुक करते हैं. ट्रांसपोर्ट फॉर्म आपका होता है. एडवर्टाइजिंग फॉर्म होता है, एडवर्टाइजिंग फॉर्म जाहिरात जो विभाग आता है, एडवर्टाइज फॉर्म आपका होता है. उसके बाद तीसरा जो फॉर्म आपका होता है सर्विसेज, सेवा. ये जाहिरात उद्योग और ये ट्रांसपोर्टिंग उद्योग, ये वाहतुक का ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म आपका है, ये एडवर्टाइजिंग फॉर्म है, और ये सर्विसेज आपका है. इनटू दिस सर्विसेज which types of records are maintaining into this bookkeeping. बुककीपिंग में किस टाइप का रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर है. सर्विसेज टू टाइप्स होती है, मॉनिटरी सर्विसेज एंड नॉन मॉनिटरी सर्विसेज. एक सर्विसेज ऐसी होती है उसमें सर्विस के बदले आपको पैसा मिलता है, और कुछ सर्विसेज ऐसी होती है कि उसमें आप पैसे पे नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, जब अब घर का एक एग्जाम्पल लेंगे, मदर प्रोवाइडेड सर्विसेज टू हर चाइल्ड. जब एक आदमी माँ अपने बच्चों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, खाना खिलाती है, उसके कपड़े धोती है, ये जो एक्टिविटीज जो की जाती है घर के अंदर, उसके बदले में आप मदर को पैसे देते हैं क्या? नहीं देते, बिकॉज मदर प्रोवाइडेड सर्विसेज, वहां पे फ्री सर्विस आपको मिलती है, उसकी वो ड्यूटी होती है. तो mother provided services to her child. Into this example, we have seen the monetary transactions, money records are not seen to these transactions. वही आप सर्विसेज बाहर से लेते हैं ना, आउटसोर्सिंग उसका करते हैं. घर पे खाना खाते हैं, उसके आप पैसे पे नहीं करते, वहां पे फ्री में आपको मिलता है. बट व्हेन यू गोइंग टू द होटल, जब होटल में आप खाना खाते हैं, तो वहां पे क्या करता है, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, वी शुड पे द बिल टू दैट होटल ओनर. उस होटल मालिक को आप क्या करते हो, पूरा बिल देते हैं, आपका पैसा देते हैं, कितना बिल हुआ वो बिल आप पे करते हैं. इनटू दिस टू एग्जांपल्स, मदर प्रोवाइडेड सर्विसेज टू हर चाइल्ड, एंड अनदर एग्जांपल वी हैव सीन द होटल. जब होटल में आप खाना खाते हैं और घर पे खाना खाते हैं, तो घर पे खाना खाते हैं तो आपको वहां पे बिल पे नहीं करना पड़ता है,
और जब वही खाना बाहर खाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं आप, बिल आपको वहां पे पेड करना पड़ता है, बिल आप वहां पे पेड करते हैं। इंट्रोड्यूस टू एग्जाम्पल विच द मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर इन्वॉल्विंग इनटू दिस ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शंस में, एक एग्जांपल में मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस नहीं है मगर सेवा प्रोवाइडेड हो रही है वो। और दूसरा जो एग्जांपल है, जो आप होटल में खाना खाते हैं वहां पे आप सर्विस पे कर रहे हैं, सर्विस की फीस पे आप दे रहे हैं, वहां पे अमाउंट आप पेड कर रहे हैं। यानी इनटू दिस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डिंग इनटू दिस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। पैसे के संबंधी के व्यवहार ही बुक कीपिंग में मेंटेन किए जाते हैं। Non-monetary transactions are not recorded into this bookkeeping। उसके बाद में देखना है डिटेल्स में ट्रांजेक्शंस के टाइप क्या क्या होते हैं, कैश ट्रांजेक्शंस क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस क्या होता है, बार्टर ट्रांजेक्शंस क्या होता है, वो पार्ट आगे का पार्ट है। मगर वो इसी द कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डिंग इनटू दिस बुक कीपिंग है। Non-monetary transactions are not recording into this bookkeeping and accountancy। यानी पैसे के जो ट्रांजेक्शंस है वही आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में मेंटेन किए जाते हैं। जिस ट्रांजेक्शंस में पैसे के व्यवहार नहीं है वो लिखे जाते नहीं। एंड ओरल ट्रांजेक्शन जो होते हैं, ओरल ट्रांजेक्शन अकाउंटेंसी में लिखे नहीं जाते। तो ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डिंग इनटू दिस बुक कीपिंग। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग। ये कंसेप्ट, ये बुक कीपिंग की क्या है, कंसेप्ट। वही अकाउंटेंसी में भी क्या होता है, ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डिंग इनटू दिस अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज अ सेकेंडरी स्टेज। व्हेन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी विल बी स्टार्ट। जब बुक कीपिंग लिखना खत्म होता है आपका साल क्या है, आपका फाइनेंशियल ईयर जो है उसके बारे में डिटेल्स देखना है आपको। 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज और फाइनेंशियल ईयर। इस डेट के दरमियान क्या करते हैं, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ये आपको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, वित्तीय वर्ष उसे कहा जाता है। सो इनटू दिस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेज, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटेंसी इज द सेकेंडरी स्टेज। जब व्हेन बुक कीपिंग इट इज एंड, अकाउंटेंसी विल बी स्टार्ट। जब बुक कीपिंग आप एंड करते हैं लिखना, तो आप डायरी जो मेंटेन करना जब स्टॉप करते हैं तब अकाउंटेंसी का रिकॉर्ड्स वहां पे मेंटेन करते हैं। ये है कंसेप्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो इनटू दिस टॉपिक नंबर फर्स्ट, we see page number 1, introduction to bookkeeping and accountancy. Bookkeeping is related with recording business transactions. Recording business transactions into this bookkeeping and accountancy. Business enterprises and other organizations deal in activities which involve exchange of money and money's worth. पैसे और पैसे के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो ट्रांजेक्शंस इस बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी में बुककीपिंग मेंटेन किए जाते हैं। All these activities are recorded for purpose of, इसका उद्देश्य जो होता है रिकॉर्डिंग करने का, पर्पज ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस एज टू वेदर एक्टिविटीज फॉर फर्म आर प्रॉफिटेबल और नॉट प्रॉफिटेबल। यानी जो एक्टिविटीज आपकी होती है, बिजनेस एक्टिविटीज, यू हैव एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस इन्वॉल्व एंड बिजनेस मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड सेल देम इनटू द प्रॉफिट। वी हैव सीन इनटू दिस कंसेप्ट बुककीपिंग। The evaluation of accounting यानी बुक कीपिंग का रिकॉर्ड जो है, बुक कीपिंग जो प्रोसेस आपकी है, ये प्रोसेस जो आपको दी गई है इन इंडिया ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य एंड रिजिम। चंद्रगुप्त मौर्य का जो रिजिम, जो कालखंड था, द मिनिस्टर कौटिल्य रोट बुक, नेम इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इसके बारे में उल्लेख किया आपको दिखता है बुक कीपिंग के बारे में। Wherein some reference can be traced regarding the way of maintaining accounting records. Afterwards is called देसी नामा। उसे देसी नामा बोल के आइडेंटिफाई किया जाता है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में इसके बारे में उल्लेख है बुक कीपिंग के बारे में, to keep the record systematically into this bookkeeping. So bookkeeping useful for various parties. ये बिजनेस से जो पार्टीज आपकी होती है, सप्लायर्स है आपके, कस्टमर्स आपके होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, वेंडर्स अलग अलग होते हैं आपके, उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन आपके होते हैं उसे पार्टीज कहा जाता है। इन द प्रिपेयर ऑफ अकाउंट्स पीरियडिकली ओनर प्रॉपर्टी, द रिकॉर्ड्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वे आर फाउंड इन 20th century। 12वें शतक में आपको इसके रिकॉर्ड्स मिलते हैं डेबिट और क्रेडिट के। इनटू दिस व्हेन यू कीप द रिकॉर्ड्स इनटू दिस सिस्टम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये जो आपका रिकॉर्ड्स है 20th century में इसके बारे में उल्लेख किया हुआ है।
वहां पे मिलता है इन द ईयर ऑफ 1494। ये जो ईयर आपका 1454 का, इस 1454 में जो इंट्रोडक्शन ऑफ लुका डी वर्गो पेसियोरो, ही इज इटली मर्चेंट, he introduced this system bookkeeping and accountancy. He introduced a double entry bookkeeping system due to industrial revolutions in 18th and 19th century. The large scale of operations were carried and joint company embraced the important form of organizations. So into this concept of bookkeeping and accountancy, we have seen the records in 12th century. In that period, we see the keep the records in that period. अर्थशास्त्र कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र वहां पे पुराने 12th सेंचुरी में भी इस बुक कीपिंग के बारे में रिकॉर्ड्स होते थे। इन द 20th सेंचुरी, 20वें शतक जब आपका आया, द नीड फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मार्जिनल डिसीजंस मेकिंग कॉज ऑफ इमरजेंसी एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग a separate branch of accounting. So the accounting was individual records we are maintaining into that period. In the social responsible accounting in the 21st century, this is due to the vast growth in the business activities. So the result of development of various fields, thus the accounting has become इनविटेबल इन मॉडर्न वर्ल्ड फॉर द बिजनेस। इसलिए बुक कीपिंग जो डेफिनेशंस दी गई बुक कीपिंग की, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सिस्टमैटिक वे। ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सो इनटू दिस डेफिनेशंस वी हैव सीन to keep the records systematically, date-wise records, summarize the record and classify the records related to monies and monies worth. That types of records are maintaining into this bookkeeping. So bookkeeping is an art of systematic recording, classifying, summarizing and financial transactions of the business for particular period, generally 1 year. इसलिए बुक कीपिंग को जो कहा जाता है, बुक कीपिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस, जो कहा गया है इसके बारे में, उसके बारे में डिस्कस करना है। हाई बुक कीपिंग इज आर्ट, व्हाट बुक कीपिंग इज साइंस। बुक कीपिंग को आर्ट और साइंस क्यों कहा गया है, इसके बारे में डिस्कस अपना करना है। बुक कीपिंग इज आर्ट, बुक कीपिंग इज साइंस, जो कहा जाता है, डेफिनेशन आपको है। आर्ट इज अ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज, जिसे आर्ट इसलिए कहा जाता है कि इज अ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज इन विच थिंग्स are learned to be presented in the beautiful and attractive way. In the bookkeeping business, transactions are written transactions we are write down into this, keep the record systematically into this bookkeeping. In the bookkeeping business, transactions are written with the skill and intelligence so as to make the understandable easily and clearly. So it is called art. So the large number of transactions are recorded systematically and periodically. Records we are maintaining into this bookkeeping. So bookkeeping is art to keep the records systematically. So bookkeeping is said to be art and science as well as science. Bookkeeping is a science because it is a science. We know that science is a branch of study base. Scientifically, records we have seen into this. When you maintain records systematically into this bookkeeping is art with systematic records maintaining. Bookkeeping is a science, study based on the central principles. Bookkeeping is also based on certain principles. So science involves scientific method of studying certain phenomenon. Bookkeeping is also scientific method of recording and involve many scientific methods to study the various aspects of business. Hence bookkeeping is called science. इसलिए bookkeeping को science कहा जाता है. So businessmen dealing with their deals, exchange of goods and services, ये जो concept आपने अभी देखी, उसके अंदर उसके बाद में जो देखना आपको
इसकी डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग की जो डेफिनेशन कहा गया है, बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग अ सेट ऑफ बुक्स। Bookkeeping is art. Bookkeeping is art of recording business dealing in a set of books. उसके बाद में नॉर्थ कोर्ट की जो व्याख्या थी, बुक कीपिंग इज एन आर्ट रिकॉर्डिंग बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट मॉनिटरी एक्सपेक्ट्स ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आर.एन. कार्टर ने डिफाइन की हुई डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज अ सर्विस, बुक कीपिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट्स of correctly recording in the books of accounts all those business transactions that result, ये result उसमें आता है that transfer money and money worth. So bookkeeping is art of keeping the accounts and regulate the systematic manner, that is called bookkeeping. Bookkeeping is art, bookkeeping is science, that is the reason of that given into these definitions. So features of bookkeeping, bookkeeping की जो features है, फर्स्ट फीचर्स उसका है, इट इज मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस। डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डिंग इनटू दिस बुक कीपिंग, सो दैट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ बुक कीपिंग। सेकंड, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसके पहले मैंने कहा था ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू दिस बुक कीपिंग। दैट इज द सेकंड फीचर ऑफ बुक कीपिंग। ऑल रिकॉर्ड आर प्रिपेयर स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 12 मंथ्स। स्पेसिफिक पीरियड मीन्स अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो आपका होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इस दौरान क्या करते हैं, अकाउंट्स लिखते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर स्पेसिफिक पीरियड आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके आपके पूरे रिकॉर्ड्स बुक कीपिंग में मेंटेन किए जाते हैं। तो कीप द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हेन यू कीप द रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली इनटू दिस बुक कीपिंग। It is an art recording business transactions scientifically and systematically and classifying records we have seen into this bookkeeping. That is the features of bookkeeping. First features क्या आपका, to keep the record, day-to-day records we are maintaining into this bookkeeping. Financial transactions are only recorded into this bookkeeping. Only monetary transactions are recorded into this bookkeeping. And specifically we are write down records into this bookkeeping. And rules and regulations are followed into this. When you keep the records, we have follow the rules and regulations. And it is art of recording business transactions scientifically. Scientifically, records are maintaining into this bookkeeping. That is the features of bookkeeping. Objectives of bookkeeping. Bookkeeping के जो objectives आपके हैं, उसमें first objective जो आपका है, bookkeeping is to keep the complete and accurate record. Complete and accurate records are only recording into this bookkeeping. That is the first objectives of bookkeeping. Second objective, record date-wise records and account-wise records we are maintaining into this bookkeeping. Date-wise and account-wise records are maintaining into bookkeeping. का third जो object आपका है, objective जो आपका है, bookkeeping. So the permanent records of monetary transactions. Only permanent records are maintaining into this bookkeepings. To know the profit and loss of the business during the financial year. ये उसका उद्देश्य उसका होता है। टू नो द टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ इंटरप्राइजेस, एक उसका वैशिष्ट है। टू नो व्हाट द बिजनेस ओज टू अदर्स, व्हाट अदर ओज टू हिम, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुककीपिंग। ये बुककीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ बुककीपिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ बुककीपिंग क्या है, कौन से इंपॉर्टेंस उसके, तो ओनर जो होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस उसका है। इंपॉर्टेंस ऑफ बुककीपिंग, फर्स्ट record the transaction systematically. That is the first important. It is not possible to anyone to remember all transactions. Record the transactions systematically, date-wise. We are recording into this concept bookkeeping. So it is not possible to anyone remember all transactions because human brain have some limitations. मानव इंद्रिय के ऊपर मर्यादा है, इसलिए we should write our records systematically, date-wise and summarize and classifying records into this bookkeeping. इसलिए bookkeeping में पूरा records systematically maintain किया जाता है because it is not possible to anyone to remember all transactions. पूरे transactions आप साल भर के ध्यान में नहीं रख सकते। अलग अलग पार्टीज आपकी होती है, अलग अलग वेंडर्स आपके होते हैं, अलग अलग सप्लायर्स होते हैं, मनी लेंडर्स आपके होते हैं, सभी का रिकॉर्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग का रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना पड़ता है। So because human brain has some limitations, so it did not know how many transactions in
that financial year. So it is not possible to anyone remember the all transactions, but bookkeeping maintaining the records of all transactions permanently and systematically into this books of accounts. It is called as bookkeeping. Financial informations. Second जो point उसका importance उसका है. Why we keep the records into this bookkeeping? Second is financial informations. Bookkeeping is useful for getting information related to our profit and loss, assets, liabilities and capitals, and investment stock at any time which we give the any times. That is the financial information we keep when you keep the record systematically, when you see the information about our assets, our liabilities and our investments. Decision making. Bookkeeping provides financial information of the businessman for decision making. जब बिजनेस का डिसीजन आपको लेना पड़ता है, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है या कुछ न्यू ब्रांच आपको ओपन करना है, फाइनेंशियल डिसीजन जो आप लेते हैं, डिसीजन मेकिंग, द बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. वहां पे आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, आपको व्हेन वी कीप द रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली वी सी द एग्जैक्ट पोजीशन, बिजनेस पोजीशन वी नो व्हेन वी मेंटेनिंग आवर रिकॉर्ड्स इनटू दिस बुक कीपिंग. सो फाइनेंशियल डिसीजन which will take in that situations. Controlling. Bookkeeping is unable to execute the business controls and activity of the business. Evidence. The business needs to financial evidence produced to the court, law, case of any discipline. इसके लिए ये इंपॉर्टेंस ऑफ है एविडेंस के लिए. We keep the records systematically. Date-wise records we are maintaining. Actual records we are monetary transactions and actual records we are maintaining into these bookkeepings. The businessman need to financial evidence. जब बिजनेसमैन को फाइनेंशियल एविडेंस की जरूरत होती है, so he provided information into that bookkeeping. bookkeeping में से पूरी इंफॉर्मेशन हो उसको प्रोवाइड होती है. इसलिए फाइनेंशियल एविडेंस टू बी प्रोड्यूस द कोर्ट ऑफ लॉ इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स. कुछ डिस्प्यूट्स निर्माण हुआ तो उस वक्त आपको ये रेफरेंस बोल के काम आता है. आवर रिकॉर्ड्स वी आर मेंटेनिंग टू दिस बुककीपिंग. टैक्स लायबिलिटी आपकी क्या होती है? Bookkeeping is useful for find out tax liabilities. For example, income tax, property tax, and GST tax. Tax liabilities के लिए we should keep the record systematically. That is the importance of bookkeeping. Utility of bookkeeping. Utility of bookkeeping में जो utility उपयोगिता उसकी है, पर utility of owner, utility of management, utility of investors, customers, government, money lenders, and developments. इन जो पॉइंट्स आपको अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इनके इंपॉर्टेंस है, उसके यूटिलिटीज. ओनर को क्या यूटिलिटीज की होती है? द बिजनेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंटरप्राइजेस एट एनी टाइम ही नो द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ आवर बिजनेस. सो ओनर, दैट इज द बेनिफिट ऑफ ओनर, ही कीप द रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली इनटू दिस बुककीपिंग. मैनेजमेंट टेकिंग द डिसीजंस, कंट्रोलिंग ओवरऑल द बिजनेस एक्टिविटीज. इसलिए इसका यूटिलिटी आपको होता है मैनेजमेंट को. इन्वेस्टर जो आपके जो इन्वेस्टर मनी टू आवर बिजनेस, इन्वेस्टर कैन टेक द प्रॉपर डिसीजन वेदर इन्वेस्टेड और नॉट इन्वेस्टेड मनी इनटू आवर बिजनेस. इसलिए इन्वेस्टर भी आप डिसीजन टेकिंग करते वक्त ये बुक कीपिंग का रिकॉर्ड्स देखते हैं. ही टेक द एग्जैक्ट डिसीजंस. सो इन्वेस्टर कैन टेक प्रॉपर डिसीजंस वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट. कस्टमर जो होते हैं, जो ग्राहक आपका होता है, कस्टमर कैन इजिली अंडरस्टैंड, उसको समझ में आता है बिजनेस आर प्रॉफिटेबल और नॉट. व्हेन यू कीप आवर रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली, व्हेन यू मेंटेन आवर रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली, वी हैव सी द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ आवर बिजनेस. बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन आपको मालूम होती है. इसलिए कस्टमर अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ही कैन बी एज्यूम अबाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स. उसके एश्योर्ड होता है, उसको खात्री होती है कि सप्लाई ऑफ गुड्स कितना आपको करना है. सो कस्टमर कैन इजिली अंडरस्टैंड financial position of the business. He can assure about the supply of goods. Supply of goods का assurance उसको मिलता है. गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट्स, इसका यूटिलिटी आपकी क्या है गवर्नमेंट के लिए? तो गवर्नमेंट कैन इजिली फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यू फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस. वेरियस रिसोर्सेज द्वारा जो टैक्स पोजीशन गवर्नमेंट को यूजुअली फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यू फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज. मनी लेंडर्स, जो लेंडर्स आपके होते हैं, जो पैसे आपको देते हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं आपके, वो मनी लेंडर्स जो होते हैं. मनी लेंडर्स कैन फाइंड आउट फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द इंटरप्राइजेस फॉर डिसीजन टू लेंड मनी और आपके बिजनेस को पैसे लगाना है, लागत लगाना है, नहीं लगाना है, पैसे देना है, नहीं, इसका डिसीजन वो ले सकते हैं मनी लेंडर्स. व्हेन यू कीप द रिकॉर्ड्स और सिस्टमैटिकली, ही डिड नॉट नो
the actual position of our business. So he take the decisions to lend the money or not. And last, developments. Business enterprises can achieve the business growth with the help of accounting informations. That is the utility of bookkeeping. ये bookkeeping के utilities, importance and features we see into this video, into this lecture. So in short, into this bookkeeping and accountancy, only monetary transactions are recorded into this bookkeeping and accountancy. We keep the record systematically. We summarize the classifying the record systematically into this bookkeeping and accountancy. Date-wise records are maintaining into this bookkeeping. पूरे डेट वाइज आप रिकॉर्ड्स वहाँ पे मेंटेन करते हैं. एंड जो आपके मनी लेंडर्स होते हैं, टेक द डिसीजंस टू लेंड द मनी टू आवर बिजनेस और नॉट. आपके बिजनेस को पैसे लागत लगाने नहीं. गवर्नमेंट को भी उसका फायदा होता है, मैनेजमेंट को भी टेकिंग द डिसीजंस. ओनर्स जो होते हैं उसको भी मालूम होता है एग्जैक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितना है आपका बिजनेस, इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की है. सो ओवरऑल इनटू दिस कंसेप्ट only monies and money's work means only monetary transactions have write down into this bookkeeping. Bookkeeping में only monetary transactions are recording into this bookkeeping and accountancy. Oral transactions are not recording into this bookkeeping and accountancy. And services, those services are monetary services. Money values, monies and money's work जिस ट्रांजेक्शंस के अंदर है, दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर ओनली रिकॉर्डिंग इनटू दिस बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ये इंपॉर्टेंस है बुककीपिंग का, है ना. इसके बाद में कंसेप्ट देखने वाले क्या ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन क्या, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या, बार्टर ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, वो डिटेल्स टर्मिनोलॉजी वर्ड जो है, फ्रीक्वेंटली आस्क इन आवर अकाउंटेंसी वर्ड, यू शुड फ्रीक्वेंटली यूज इन आवर अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी में जो फ्रीक्वेंटली आप यूज करने वाले वर्ड्स है वो कंसेप्ट इसके बाद में कंटिन्यूसली आप देखने वाले. और अकाउंटेंसी जो होती है सेकेंडरी स्टेज, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. अकाउंटेंसी क्या है, तो इनटू दिस वीडियो, इनटू दिस लेक्चर्स वी सी ओनली द कंसेप्ट ऑफ बुककीपिंग. बुककीपिंग क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड यूटिलिटीज ऑफ बुककीपिंग वी हैव सीन इनटू दिस लेक्चर बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी. नेक्स्ट वीडियो वी सी द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी एंड सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वर्ड्स. जो पारिभाषिक शब्द है जो फ्रीक्वेंटली आस्क इन आवर अकाउंटेंसी, उसमें ट्रांजेक्शंस है, गुड्स है, एसेट्स है, प्रॉफिट, लॉस, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब जो वर्ड्स आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क इन आवर अकाउंटेंसी वी डिस्कस नाउ इनटू नेक्स्ट वीडियो द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. सो स्टूडेंट, नाउ वी सी द इनटू दिस लेक्चर्स concept of bookkeeping and concept of accountancy and concept of business. बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड काइंड्स ऑफ बिजनेस. उसमें जो बिजनेस के काइंड्स है वो ट्रांसपोर्टिंग फर्म आपके होते हैं, एडवर्टाइजिंग फर्म है और सर्विसेज फर्म आपके होते हैं. सर्विसेज आपके बिजनेस आपके होते हैं. इसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर वी हैव सी इनटू दिस बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ओरल ट्रांजेक्शंस आर नॉट नेसेसरी इनटू दिस बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी. Oral transactions and non-monetary transactions are not recording into this bookkeeping and accountancy. ये important points ये theoretical parts में. And इसमें bookkeeping जो इसके 20th century में भारत के अंदर, इंडिया के अंदर इसके रिकॉर्ड्स हैं bookkeeping के, है ना. bookkeeping का रिकॉर्ड 20th century में भी लिखा जाता है. और 1494 में the father of double entry bookkeeping system जिसे कहा जाता है लुका डी बर्गो पैसियोलो, he introduced this bookkeeping system in 20th century. 12th सेंचुरी में इंडिया के अंदर जो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था, उस अर्थशास्त्र के अंदर डेबिट और क्रेडिट के बारे में डिस्कस था. नेक्स्ट इसमें देखने वाले व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट. ये थ्योरेटिकल पार्ट्स आपका था विच इज ओनली द कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग. खाली बुक कीपिंग के बारे में इस वीडियो के अंदर आपने डिस्कस किया. बुक कीपिंग क्या होता है, सर्विसेज क्या होते हैं, विच टाइप्स ऑफ आवर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इनटू दिस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. इन शॉर्ट फॉर्म, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग डेटा, सिस्टमैटिकली डेटा, date-wise records we are maintaining into this bookkeeping. Day-to-day records we have write down into this bookkeeping. That is the aim of keep the records systematically into this our business activities. ये था इम्पोर्टेंस इसके उसके ऊपर का. इसलिए ये डेफिनेशन में वही कहा गया था आपको कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस फॉर पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 year. 1 year मीन्स आवर फाइनेंशियल ईयर. और फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका, 1st April to 31st March.
इज आवर फाइनेंशियल ईयर। इस वित्तीय वर्ष के दरम्यान आप क्या करते हैं, पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंस है बुक कीपिंग का होता है। सो रिकॉर्ड मेंटेनिंग प्रोसेस एंड रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। इन शॉर्ट रिकॉर्ड मेंटेनिंग प्रोसेस, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और रिकॉर्ड कीप करते हैं, सिस्टमेटिकली कीप करते हैं। इसलिए बुक कीपिंग को कहा जाता है बुक कीपिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट। आर्ट वी कीप द रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली, एक कला है और एक शास्त्र है। साइंस में क्या होता है, साइंटिफिकली रिजल्ट आपको आता है। इसी तरह वेन यू मेंटेनिंग और रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली डेट वाइज वी हैव प्रिपेयर द अनदर अकाउंट्स, वी हैव सी द बैलेंस शीट्स, वी हैव प्रिपेयर द नेक्स्ट अकाउंट, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट इज अ मिरर ऑफ आवर बिजनेस। इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में पूरा टॉपिक के अंदर। बट थ्योरेटिकल पार्ट जो है, यहाँ पे दो टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंस एलेवन के अंदर आपको है और वही स्टूडेंट क्या करते हैं, लर्न नहीं करते, इसलिए यहाँ पे आपको लर्न करना है। इसलिए द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट रिक्वायर मोर प्रैक्टिस एंड लेस ऑफ रीडिंग। मोर प्रैक्टिस एंड स्टूडेंट ज्यादा करके यही करते हैं, क्या करते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। सब्जेक्ट रिक्वायर फॉर मोर प्रैक्टिस एंड लेस ऑफ रीडिंग। रीडिंग आप कम करते हैं, आपके प्रैक्टिकली आपको एक्यूरेट सॉल्व करना आता है। मोर प्रैक्टिस आप करते हैं और लेस रीडिंग करते हैं, इसलिए क्या होता है, आगे चल के कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आती जल्दी। इसलिए सिस्टमेटिकली वन बाय वन आपको देखना है बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। तो बुक कीपिंग इज इन शॉर्ट आपने देखिए इसके अंदर टॉपिक के अंदर टॉपिक नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट इसमें देखना है आपको कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो ठीक है, रुकते हैं यहां। नेक्स्ट वीडियो जो आपका है, सेकंड जो वर्ड आपका है सेकेंडरी स्टेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ बुक कीपिंग एंड सेकेंडरी स्टेज आपका अकाउंटेंसी है। व्हेन बुक कीपिंग एंड, जब बुक कीपिंग लिखना बंद होता है, अकाउंटेंसी विल बी स्टार्ट। अकाउंटेंसी आप स्टार्ट करते हैं। जो फाइनेंशियल आपका है फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च, 31 मार्च को क्या करते हैं, पूरा अकाउंट आप टैली करते हैं, यानी अकाउंटेंसी आपको लिखी जाती है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये प्रोसेस साथ में चलते रहते हैं। व्हेन बुक कीपिंग एंड, अकाउंटेंसी विल बी स्टार्ट। बुक कीपिंग जब खत्म होता है लिखना आपका, तो आप क्या करते हैं, पूरा अकाउंट क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उससे रिलेटेड जो अकाउंट आपके पूरे क्लोज करते हैं। बाद में देखते हैं बैलेंस शीट आपका ऑटोमेटिक टैली कर होता है। बैलेंस शीट इज द मिरर ऑफ द बिजनेस, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। स्टूडेंट रुकते हैं यहां, नेक्स्ट वीडियो है आपका अकाउंटेंसी का, ठीक है। थैंक यू।